Pulvada, there's some big breaking news which is coming in. Well, Times Now is learning that the Bombay High Court has lifted the stay on the film Hamare Bara. Now, this movie has received the clearance from the High Court for the exhibition after making changes as were suggested by the court, and it was agreed upon by both the parties. So there is a relief coming in for the filmmakers. Anu Kapoor's Hamare Bara, which was earlier, remember, slated for a release on the 7th of June. Then it was postponed after there were pleas filed against it till the 14th of June. Now, today on the 19th of June, finally it manages to get the go-ahead from the High Court. However, there are going to be certain edits which have been suggested, and both parties have agreed that after the edit, it is ready to be put out on screens. Now, that's a big story that we've been getting for you. Remember, there have been hearings happening every day. Just yesterday, the Bombay High Court had said that there is nothing objectionable against the Muslim community in this film. In fact, it is a film for upliftment of women. Let me go across to Shweta. Shweta, it's important for us to understand what is the rationale, the reasoning by the Bombay High Court as it gave this film a clearance, and what are the changes which are going to be made in the film to ensure that it is above board as per the High Court? Well, absolutely. In fact, as far as the order of the Bombay High Court is concerned, now remember it has been kept for 1:30, but crucial developments have come from court. Now just because we were present inside the court, now few important things have been highlighted. Now, first, we ensure about the court what they have said, that both the parties have agreed to act upon the suggestion that has been made by the Honorable Bombay High Court, number one, and certain editing would be done in the dialogues. There have been 2 to 3 alleged objectionable dialogues in the movie that would be removed by the agreement of both the parties, alongside few words which are not going well with the audience. Alongside few words which are not going well with the audience, with the clutch of petitions, that will also go. Currently, we are joined by Ravi Gupta. He is one of the producers of the movie. Ravi ji, आप भी कोर्ट में मौजूद थे. जिस तरीके से कोर्ट में आज ऑर्डर का दिन है, काफी खास बातें सामने रखी गई. क्या कुछ सजेशंस दिए गए, वो बताएं. कोर्ट में ऑनरेबल कोर्ट ने हमारी बातें सुनी और फिल्म रिलीज करने के लिए ओके किया है कि आप फिल्म रिलीज करिए. 2 कट्स थे, आई मीन 2 डायलॉग्स म्यूट करने बोले थे. 2 डायलॉग म्यूट करके आप फिल्म रिलीज करिए 21 को. जी, 21 को फिल्म रिलीज होनी है, लेकिन आपको टीजर के लिए भी ये बताया गया था कोर्ट में कि 5 लाख का आपको एक कॉस्ट भी निकला है. उसके बारे में बताएं. बोला था, बट उस पर डिस्कशन हो गई है हमारी, तो वो थोड़ा सा कॉन्फिडेंशियल है, तो वी आर नॉट गोइंग टू शेयर दोस थिंग्स. Right. There were certain words in the movie जिसके implications बाहर आ सकते थे. इस बात का भी कोर्ट ने जिक्र किया था. कुछ खास तो बोल रहे थे कि आप 2 डायलॉग मेन इश्यू था कि उनका आपका टीजर हटा दीजिए. टीजर हमने एज पर द कोर्ट एडवाइस हमने टीजर हटा दिया, और उसके बाद फिल्म जज ने ऑनरेबल जज ने हमारे फिल्म को देखा, तो दे आर वेरी हैप्पी. बोले फिल्म रिलीज होना चाहिए, बट सामने वाली पार्टी बोल रही थी कि 2 डायलॉग आप म्यूट कर दीजिए, देन आप फिल्म रिलीज करिए. तो आज सारी चीजें कॉम्प्रोमाइज हो गया, और कंफर्मेशन होने के बाद में फिल्म 2 तारीख को रिलीज कर रहे हैं. सॉरी, 21 को रिलीज कर 25 को रिलीज कर रहे हैं. रवि जी, साथ में मुझे ये चीज भी बताइए, डिस्क्लेमर भी रखा गया है 12 सेकंड्स का. हाँ, वो भी हो गया. 12 सेकंड का जो डिस्क्लेमर था उसको भी हमने मान लिया, हमने ओके कर दिया उसको भी. यानी अब फिल्म दर्शकों के बीच बड़े पर्दे पर कब आ सकती है, नए टीजर या ट्रेलर के साथ? सेंसर टेलर के साथ में हमारी फिल्म 21 को रिलीज हो रही है अक्रॉस इंडिया. अक्रॉस इंडिया 21 तारीख को रिलीज हो रही है. 21 जून. कितना बड़ा रिलीफ है आपके लिए? हमारे लिए बहुत बड़ा रिलीफ है. हम ऑनरेबल कोर्ट ने हमारी बातें सुनी और बहुत अच्छा किया हमारे साथ में, और हमें न्याय मिला इस चीज के लिए. आपकी लड़ाई सुप्रीम कोर्ट तक गई थी, उसके बाद फिर आप बॉम्बे हाई कोर्ट तक आए. मुझे ये समझाइए कि फिल्म का उद्देश्य क्या है. कई बार इस मोटिव पर सवाल उठाए गए हैं, जो क्लच ऑफ पिटिशंस भी हाई कोर्ट के सामने आया. फिल्म का जो मुद्दा है हमने ऑनरेबल कोर्ट को भी बताया है, कोर्ट ने भी हमारी फिल्म देखा है. तो ये अपना वुमेन एम्पावरमेंट के लिए फिल्म है हमारी, पॉपुलेशन के लिए फिल्म है हमारी, और एक मैसेज है फिल्म में कि औरतों को इज्जत होना चाहिए, मतलब लेडीज की इज्जत होना चाहिए, रिस्पेक्ट होना चाहिए. ये सारी चीजें हमारी फिल्म में. सर, क्या मोटिव है फिल्म का? काफी बड़ी राहत मिली है. काफी बड़ी राहत मिली है सर आपको? इसमें कोई शक नहीं. माननीय हाई कोर्ट से हमें बहुत राहत मिली है, जिसके लिए हम बहुत परेशान थे. पहले हमारी मूवी 7 जून को रिलीज होने वाली थी, उसके बाद फिर 14 जून को रिलीज होने वाली थी, लेकिन अब आज माननीय हाई कोर्ट न्यायालय जी ने
हमें बहुत राहत दी है। और हमारा जिन्होंने पिटीशन फाइल की थी, जिन्होंने हम पे केस किया था, तो उन्होंने हमारी बात को समझा, क्योंकि हमने उन्हें एक ही बात समझाई कि सिर्फ ट्रेलर देख करके आप पूरी फिल्म का अंदाजा मत लगाइए। तो उन्होंने हमारी बात को माना। और सबसे बड़ी बात, माननीय हाई कोर्ट ने हमारी मूवी को पर्सनली देखा और पर्सनली देखने के बाद व्यूज किए और उनको ये कहा पिटिशनर को कि आपने अभी तक जो सिर्फ ट्रेलर देखा है, अगर आप मूवी देखेंगे तो आपके लिए कोई भी ऐसी गलत बात नहीं है, जो कि हमारे लिए बहुत अच्छी है। और हम आप सबसे निवेदन करते हैं कि आप पूरे परिवार के साथ, पूरी फैमिली के साथ, अपने पड़ोसी के साथ जाए, मूवी देखिए हमारे 12, और ये हम सब के हित के लिए, हमारे भारत के हित के लिए। जी सर, मैं जानना चाहेंगे कुछ एलिगेशंस ये भी थे कि ऑब्जेक्शनल वर्ड्स का भी इस्तेमाल किया गया है, उस पर रोशनी डालिए। देखिए, ऑब्जेक्शनल वर्ड्स के लिए जो बात कर रहे थे, तो अब जब हम लोग मूवी बनाते हैं तो हम लोग को इस चीज़ का नहीं मालूम पड़ता, लेकिन जब कोई आदमी उसको अपोज करता है तो हमने उन चीज़ को भी संज्ञान लिया और हमने उनके मुताबिक जो उन्होंने हमें कहा, हमने जो भी जस्टिफाइड था, जो भी माननीय न्यायालय जी ने हमें आदेश दिया, हमने उस आदेश को मान करके उसको म्यूट कर दिया और पूरी मूवी को एक अच्छे उस पर लेके जा रहे हैं, अब आपके आशीर्वाद से। जी, आखिरी में बस ये दोनों आपसे मैं पूछना चाहूंगी कि इस बात में कितनी सच्चाई है। बहुत सारे रिपोर्ट्स भी आ रहे थे फिल्म के दौरान ही कि धमकियां मिल रही हैं और इसके कनेक्शंस बहुत दूर तक जुड़े हैं, आईसिस तक जुड़े हैं। देखिए, जब पहले हमने इसका टीजर रिलीज किया था तो हमें बहुत धमकियां आ रही थी, जान से मारने की, सर तन से जुदा कर देंगे। लेकिन अब हम लोग इस चीज को भूल गए हैं। वो इसलिए भूल गए हैं क्योंकि शायद कुछ लोगों को ये नहीं मालूम, उन्होंने सिर्फ टीजर देखा और अंदाजा लगाया। लेकिन जब अब उन तक मैसेज आ रहा है, बल्कि कल हम लोग यहाँ माननीय हाईकोर्ट न्यायालय में थे, और हमारे साथ में जो अपोजिशन पार्टी वाले थे, उन्होंने हमारे साथ मिलकर, हमारी बहनों ने, जो मुस्लिम बहनें थी, बेटियां थी, हमारी माएँ थी, उन्होंने हमारे साथ मिल करके हमारी फिल्म के लिए भी अच्छा बोला और एक अच्छे के लिए हमने फिल्म बनाई है। ये वुमेन्स एम्पावर के लिए मूवी है, ये आपके जनसंख्या कंट्रोल करने पर है, पॉपुलेशन कंट्रोल के लिए मूवी है, ये एजुकेशन के ऊपर मूवी है। तो अगर आप मूवी देखेंगे तो आपके मन से सब चीजें हट जाएगी। मेरा आखिरी सवाल आप दोनों से, आज प्रेस शो भी है, क्या इस प्रेस शो को डिले किया जाएगा या ये प्रेस क्योंकि हाईकोर्ट ने बोला है कि आपको सर्टेन चेंजेस करने के बाद ही आप पर्दे पर वो चेंजेस हमने कर दिए हैं जी, वो बड़े माइनर थे, म्यूट करना था, वो कर दिया है और अब हम प्रेस शो कर रहे हैं, आज ही कर रहे हैं। Well, absolutely. Here, what we understand from these producers are that the nod has been given by the Honorable Bombay High Court for the movie, and according to them, the movie highlights women empowerment. It talks about education, and this is how the movie is going to give a good impact on the society. Back to you. Well, this is an interesting one to be watching out for. We'll have to wait and see. Of course, it has been cleared for release, and today the first screening is going to begin. Thank you so much for getting us those details as well.